فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اینڈ سائنسز حیدرآباد کیمپس کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر نمل اسکاؤٹ گراؤنڈ میں منعقدہ 3 روزہ فیملی میلے کے آخری دن رکن قومی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی نے دورہ کیا، جنہیں ریجنل ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر عامر زاہد نے خوش آمدید کہا اور انہیں اسٹالز کا دورہ بھی کرایا۔ صابر قائم خانی نے اسٹالز کے دورے کے دوران طلباء کی فرمائش پر ایک کھیل میں بھی حصہ لیا اور طلباء کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر عامر زاہد خان اور نمل انتظامیہ کو بہترین میلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرنے کے علاوہ سماجی تنظیم زہد کی جانب سے تحفتاً دی جانے والی قائد اعظم محمد علی جناح کی شاندار پورٹریٹ، جس کو مقامی فنکاروں اعجاز حسین رضوی اور شاہد اقبال نے کینوس پر آئل پینٹ سے تیار کیا تھا اور جس کی نقاب کشائی 24 دسمبر کو کی جا چکی تھی، نمل حیدرآباد کیمپس کو پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ نمل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب نے حیدرآباد کی رونقوں کے حوالے سے جو ہمارا شہر تھا، محفلوں کا، مشاعروں کا، فیملی پروگراموں کا شہر تھا، ٹھنڈی ہواؤں کا شہر ہے، اس کو دوبارہ سے اس میں نئی اور جدت کے ساتھ جو چیزیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ادارے تو بے شمار ہیں، لیکن شہری سطح پہ کبھی کسی ادارے نے نہیں سوچا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، شہریوں کے لیے بھی ایک بہتر اور معیاری کوئی پروگرام رکھیں۔ اسکاؤٹ گراؤنڈ 9 نمبر میں آج کا پروگرام اپنے محدود وسائل میں جس طرح سے نمل نے، ان کے ڈائریکٹر نے، ان کی پوری ٹیم نے اس کو کیا ہے، قابل مبارکباد اور قابل تعریف ہے۔ اور خاص طور پہ اس پروگرام کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ 25 دسمبر یوم قائد اعظم جو ولادت یوم ولادت قائد اعظم کے حوالے سے ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ امید ہے کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور نمل نہ صرف یہ کہ ان پروگراموں کے حوالے سے بلکہ بہتر تعلیم و تربیت دینے کے لیے بھی جو اس کا نام اور مقام ہے پورے پاکستان میں، حیدرآباد کا بھی جو ان کا یہاں پہ جو نمل کا انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹی ہے، یہ ضرور اپنا کام پورا کرے گی۔ تو ایک بار پھر میں نمل کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ محمود جعفری اور ریجنل ڈائریکٹر نمل حیدرآباد بریگیڈیئر عامر زاہد نے اظہار خیال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بریگیڈیئر عامر زاہد ستارہ امتیاز نمل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر صاحب نے 3 روزہ میلے کا میلہ کیا۔ ان 3 روز میں لوگوں میں جوش و خروش رہا۔ میں بھی آیا اور میں نے یہ جوش و خروش دیکھ کر میری دل سے دعا نکلی، خدا کرے کہ میرے حیدرآباد چمکتا دمکتا خوشیوں سے بھرا ہوا حیدرآباد ہو جائے۔ اس میں
ब्रिगेडियर आमिर जाहिद सितारा इम्तियाज़ ने हैदराबाद की गिरां कदर काम किए हैं। पहली यूनिवर्सिटी का क़याम हैदराबाद में, ये उनकी तरफ से है बहुत बड़ा इनाम। और आज तीसरे दिन में आया तो मैंने आके देखा कि लोगों का जोश व खरोश देखकर, क्योंकि इस महंगाई में लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, परेशानी के आलम में हैं, उन्हें 2 मिनट खुशी के मैसर हो जाएं, उससे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या होगी। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं सितारा इम्तियाज़ ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से, और खराज तहसीन पेश करता हूँ। हर अच्छे काम में मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने अब तक वो काम किए हैं जो अच्छे ही नहीं, काबिल शताइश हैं। फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदा दिली का यह आलम है कि उनकी ख्वाहिश ये रहती है कि हैदराबाद में कोई ना कोई इवेंट दूँ ताकि मेरे हैदराबाद शहर के लोग मुस्कुराते, खुश और खुर्रम रहें। मैं उनकी इस आदतों को, इस मोहब्बतों को मैं खराज तहसीन बार बार पेश करता रहूँगा। और तारीख़ हमेशा हमारे बुज़ुर्गों को, अच्छे लोगों को, बाकिरदार लोगों को हमेशा याद रखती है। और ब्रिगेडियर साहब ने हमेशा ऐसे आला काम किए हैं कि नमल यूनिवर्सिटी के शक्ल में एक पौधा लगाया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके समरात आने शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि इवेंट तक पहुँच गई है बात। और हैदराबाद शहर को खूबसूरत, सरसब्ज और शादा बनाने के लिए इन्होंने जो घर घर पौधा मुहिम का आगाज़ किया है, ये इस बात की निशानदेही है कि हमारा हैदराबाद सब्ज़ और शादाब ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हैदराबाद मेरा सिंध और पाकिस्तान जिंदाबाद। और हैदराबाद शहर के नुमाइंदे के आज हैदराबाद में लतीफ़ाबाद नमल के साथ जो स्काउट ग्राउंड है उसमें आमद पर मैं अपने मेंबर कौमी असम्बली जनाब मोहतरम साबिर कायम खानी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा के साथ, असातिज़ा के साथ अच्छा गुज़रा होगा। और हम सब उनको खुशामदीद कहने के साथ साथ उनकी तवज्जो इस ग्राउंड की हालत ज़ार पर दिलाना चाहते हैं। ये ग्राउंड एक नेमत है जो तमाम इलाके के लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तलबा के लिए और दीगर समाजी हवाले से खिदमत का एक ज़रिया है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस ग्राउंड की हिफाजत, इसकी खूबसूरती और इसको सही हालत में बरकरार रखना सिर्फ नमल ही नहीं, मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, तमाम अहले इलाका का फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है जब इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ हमारे साबिर भाई इसको बेहतर करवा देंगे तो फिर हमारा असल काम शुरू होगा कि हम इसकी हिफाजत करें और इसको एक इस तरह हालत में रख सकें कि इलाके के तमाम लोग, बिलखुसूस बच्चे, इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब साबिर कायम खानी के साहब से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्काउट ग्राउंड 9 नंबर में नमल यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के डायरेक्टर ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब की इस बेहतरीन काविश को मैं बहुत
मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि एक अरसे से हमारे यहाँ पर फैमिली प्रोग्राम होना आहिस्ता आहिस्ता नापेद हो गए हैं, और जिन डिपार्टमेंट्स का ये काम है वो अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से नहीं अदा कर पाते, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह काम करेंगे तो यकीनन शहरियों को एक बड़ा बेहतर मौका मिलेगा। नमल यूनिवर्सिटी ने तालीमी मैदान में पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा काम किया है, और हैदराबाद में भी जब से इसका कैंपस कायम था तो इतनी शायद उस वक्त लोगों को मालूमात नहीं होगी, लेकिन जब से एक डायनामिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हम आई, और उसके बाद से ना सिर्फ ये कि नमल आवाम के पास बल्कि स्टूडेंट्स की भी बेहतरीन और अव्वल फर्स्ट चॉइस बन गया है। और उम्मीद है कि जब इसका नया कैंपस जहाँ ये बना रहे हैं कोसार में वो शुरू होगा तो मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। आज मैंने जब स्टॉल्स का विज़िट किया तो बड़ी खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने ख़ुद अपने स्टॉल लगाए हुए थे और वो बड़े पुरजोश थे इस हवाले से, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को अगर बेहतरीन मौका मिले, उनकी सलाहियत के मुताबिक हम मौका दें तो ये बच्चे ज़रूर, जैसे आज कायद आज़म का दिन है तो हमारा कायद तो आज़म था ही, हमारी कौम को भी अक़वाम आलम में एक मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम मिलेगा। जितना टैलेंट है, बदकिस्मती से हम उसको उस के मुताबिक सहूलियात नहीं दे पा रहे जो हुकूमतों को देनी चाहिए। उम्मीद ज़रूर है कि एक मुल्क जो 74 साल पहले वजूद में आया, इस नाम का मुल्क इससे पहले दुनिया में नहीं था, इस नाम की कौम दुनिया में नहीं थी, और कौमों और मुल्कों के लिए ये 74-75 साल कुछ नहीं होते, सदियों में जाके कौमों की तारीख़ बनती है, और जो खित्ते होते हैं, इलाके होते हैं, उनकी तारीख़ मुरतब होती है। उम्मीद है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। कायद आज़म का यौम विलादत है तो उसके हवाले से सिर्फ इतनी सी बात कि कायद आज़म का विजन देखें कि दो बातें उन्होंने हमारे मुल्क के लिए जो कही और जो जिस पर निशानदेही की, और आज हम सब उसका शिकार भी हो रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि उर्दू आपकी कौमी ज़बान होगी, और इसके हवाले से कोई आपको अगर किसी हवाले से आपको गलत करता है, आपको भटकाता है, तो ये समझे कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम जो मुल्क में रहने वाली तमाम अक़वाम हैं उनके दरमियान अगर कोई बातचीत का ज़रिया है, राब्ते का ज़रिया है, तो वो उर्दू है। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप अब से आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मसाजिद में जाने के लिए, या जो इबादत गाह आपकी है वहाँ जाने के लिए आप अपनी इबादतों में आज़ाद हैं। आप पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में लग जाएं। हम सबको भी तमाम इख्तलाफात भुला के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को हम अजीम बनाएंगे, ये हमारी पहचान है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। मैं यहाँ तमाम जो स्टाफ मेंबर हैं, टीम हैं, जिन्होंने मेहनत की, उन सबको इतने बेहतरीन, मुझे मालूम है कि एक इंस्टीट्यूट के इतने वसाइल नहीं होते। आमिर ज़ाहिद भाई ने अपने ताल्लुकात से, अपने ज़राए से नमल को और दीगर ज़ाती ताल्लुकात के ऐसे जितना काम करवाया है, और इस ग्राउंड की तामीर माजी में 2 दफ़ा हो चुकी है। जैसे कहा आमिर ज़ाहिद भाई ने कि हमारा फ़र्ज़ होता है कि अपनी चीज़ों को संभालना। पहली बार ये ग्राउंड 88 में उस वक्त के मेयर मरहूम आफ्ताब अहमद शेख भाई ने जो है चिल्ड्रन पार्क के नाम से बनाया, और फिर 2007 में जब हमें मौका मिला तो हमने इस ग्राउंड में दोबारा से इसको बेहतरीन ग्राउंड बना के दिया, वॉकिंग ट्रैक बना के दिए, लाइट्स लगाई, बाउंड्री वाल बनाई। लेकिन जिस तरह हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, कौमी मिल्कियत की चीज़ों की हिफाजत नहीं करते। ये अवामी ख़जाने से बनते हैं और इसके मालिक भी अवाम होते हैं। अगर ये जिस हमने समझ लिया कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो अवाम की मिल्कियत है, इसकी हिफाजत, इसको संभालना, चलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको कोई ख़राब नहीं कर सकेगा। एक बार फिर आमिर भाई ने जो मुझे कहा, हुक्म दिया, तो नमल के अतराफ़ के रोड्स और ये पार्क में हमें जैसे ही फंड्स मिला गवर्नमेंट से, मैंने अपनी स्कीम में तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के फ़ंड जैसे ही आए तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आ जाएंगे इसी साल में। अगर कोई किसी ने यू टर्न ना लिया तो हम इसको ज़रूर पार्क को इसकी बेहतरीन शक्ल में बेहतरीन तरीके से बहाल करवाएंगे। आप सबको इतने बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिर भाई की इधर मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूँ, अपनी फैकल्टी और तमाम स्टाफ ज़रा तवज्जो इधर मरकूज़ कीजिए। जो स्टॉल्स नमल के तुलबा ने लगाए हैं, मैडम नौरीन आपके लिए काफ़ी मुतफक्किर थी कि उनमें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन का ऐलान किया जाए। मैंने ये फ़ैसला किया है कि ये जो मसाबकत है पहली, दूसरी, तीसरी नंबर की, ये कम से कम होनी चाहिए। लिहाजा वो तमाम स्टॉल्स जो तुलबा ने लगाए हैं, मेरी तरफ से हर एक स्टॉल को 1000 रुपये कैश इनाम दिया जाता है। आप सब नंबर 1 हैं, आप में मीरा और रीमा वाला कोई मुकाबला नहीं है, सब नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इंशाल्लाह ताला फंड भी बहुत हैं मुल्क में, और जिस तरह हालात जा रहे हैं लगता है यू टर्न नहीं बल्कि मोटरवेज और हाईवे पर साबिर भाई की गाड़ी जो है वो धनाधन जाएगी। हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं, और अगर फंड नहीं भी मिले, बस आपकी हमारे साथ ताउन होना चाहिए। खुद लोग, यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत न सिर्फ ये कि ग्राउंड की हालत को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि हम सब अहल हैं कि हम इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह भी कहा साबिर भाई ने कि 2 दफ़ा तामीर हुई है, और मैं देखता हूँ हर यूनियन काउंसिल में हुकूमत की बिल्डिंग्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, हर ताल्लुक़े की सतह पर एक अच्छा अस्पताल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और वहाँ पर जो तैनातियाँ हैं, अमला है, वो भी उसी इलाके का है ज़्यादातर। फिर भी हालत ज़ार ये है कि खाक और गर्द उड़ रही है। लेकिन आप देखें माशाल्लाह इतने तवाना, इतने खूबसूरत चेहरे और इतने प्यारे प्यारे आप तुलबा, इनकी मौजूदगी में जो साबिर भाई ने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ये रोड भी बनेगी, मदरसे के साथ भी रोड बनेगी, मदरसे के बच्चे भी खेलेंगे, इलाके की आबादी के बच्चे भी खेलेंगे, और हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो साबिर भाई की इजाज़त से या बल्दिया की इजाज़त से हम आपकी खिदमत के लिए कभी कभी साल में 1 आध दफ़ा इसकी रानाइयों में इजाफ़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपने जो लफ्ज़ दिए हैं, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू। कैमरामैन सलमान रब्बानी के साथ आसमा आसिफ, अदल न्यूज़, हैदराबाद।